Secretary, PSBT and IIT Chandigarh. Mohammad Harun Malik sir, Special Secretary, Tribal Affairs Department, Jammu and Kashmir. Professor Dr. Gurinder Pal Singh Barar, Registrar MRS PTU Bhatinda. Respected Chairman, RN Group of Colleges. Respected Praveen Kataria ma'am, Director General of RN Group of Colleges. B.S. Sidhu sir, Director RN Group of Colleges have entered. You may please rise and then take your seat. Please rise, students, and you may take your seats. I would like to request Dr. Anshu Kataria sir to present bouquet to our guest of honor sir, Dr. Rajiv Gupta sir. Now I would like to request again Chairman RN Group of Colleges to present bouquet to Mohammad Harun sir. I would like to request Chairman sir to present a bouquet to Registrar MRS PTU Dr. Gurinder Pal Singh sir. Thank you very much, ma'am. I would like to request our IT department to start a video as an introduction of Shri Rajiv Gupta sir, Secretary PSBT IT and Chandigarh, as introduction of sir. Sir is presently Secretary PSBTE and IT Chandigarh, that is Punjab State Board of Technical Education and Industrial Training. He is an IAS officer. RN's Group of Colleges welcome respected Dr. Gurinder Pal Singh Barar, Registrar. So first of all, we are looking at the video of Professor Gurinder Pal Singh sir. You may continue. He is Doctorate in Philosophy from Sant Longowal Institute of Engineering and Technology. He has done LLB from Punjab University Chandigarh, his postgraduate diploma in electrical engineering, and has also done chartered engineer from Kolkata. With the 25 years of teaching experience, he has guided many PhD and MTech students. His area of research include non-conventional resources of energy generation, solar biogas model for generation of electricity, biomass energy generation, etc. He is life member of the Institute of Engineers, Institution of Electronics and Telecommunication Engineers, Indian Society of Technical Education, and many more. Thank you very much. Thank you, sir, for gracing the occasion. I would like to request now the IT department to play the video of Rajiv, sir, as his introduction. So soon, the chief guest of the occasion would be arriving here, Honorable Governor Haryana, Shri Bandaru Dattatreya. He would be arriving soon. We are worthy enough that the dignitaries present on the dais are here with us. So kindly play the video of Shri Rajiv Gupta sir, who is Secretary, Punjab State Board of Technical Education and Industrial Training. A very warm welcome to Shri Rajiv Kumar Gupta sir and this 11th convocation at RN's Group of Colleges. He is an Indian Administrative Services Officer. He has done Bachelor's in Engineering from Punjab Engineering College and Master in English Literature from Punjab University Chandigarh. He has held many important assignments such as Additional Deputy Commissioner Chandigarh, Joint Commissioner cum Secretary Municipal Corporation Chandigarh, District Transport Officer Ropad and Mohali, Sub-Divisional Magistrate Kharar and Jalalabad.
He has published many research papers in various reputed journals in national and international level and attended various events outside India in Barcelona as well as in Osaka, Japan, and has been posted as additional Deputy Commissioner in Mohali during the second wave of COVID. Sir Aryans welcome you in this convocation ceremony. Thank you very much. Thank you. Now I would like to request you again to play the video of Muhammad Harun Malik sir, who is Special Secretary, J&K Tribal Affairs Department. Dr. Praveen Kataria, Director General, RN Group of Colleges, to admit the student to confer upon the degrees. First of all, I would like to request our worthy guest of honor, Shri Rajiv Gupta sir, to declare the convocation open. Thank you very much, sir. May I now request again Dr. Praveen Kataria ma'am to admit the student to confer upon the degrees. By the virtue in me, I admit you to the degrees of Masters of Business Administrations, Bachelors of Law, Bachelors of Education, Bachelors of Technology, Bachelors of Agriculture, Bachelors of Computer Application, Bachelors of Business Administration, Bachelor of Commerce, and Bachelor of Arts. Thank you, ma'am. May I now request our guest of honor, Gurinder Pal Singh sir, to present the student who have been duly certified for the degrees. I present to you these candidates who have been certified after examination to be duly qualified to receive the degree of Master of Business Administration, Bachelors of Law, Bachelors of Education, Bachelors of Technology, Bachelor of Agriculture, Bachelor of Computer Application, Bachelor of Business Administration, Bachelor of Commerce, Bachelor of Arts, to which I pray they may be admitted. Thank you, sir. May I now request to Shri Rajiv Gupta sir to please award the degrees to the students who are the toppers of their batches. So, okay, sir. I would like to request all the dignitaries to come from the stage and to award the degrees. So, I would be announcing all the student name, and as per your instruction passed by the teachers, you will be coming forward. Aman Kumar, Chandan Kumar, Jahangir Khan, Mehraj Uldin Malik, Peer Alib Ahmad, Kamar Abbas, Shamim Abdullah, Amir Hassan Wage, Ashaq Hussain Gane, Ajay Kumar, Irshad Ahmad Mir. Student, please stand in a queue, and whenever turn is there, you please come forward.
Students, it's a day of celebration. You can clap for your fellows. तालियां बजती रहनी चाहिए क्योंकि जैसा कि हमने बोला, ग्रेजुएशन इज नॉट द एंड, इट्स अ बिगिनिंग टू अ ब्रिलियंट फ्यूचर. इसके बाद मैं नाम लेना चाहूँगी इरफान अहमद मलिक, जैमले, कुनाल, मोहम्मद आयुब रैना, राजा आमिर मलिक, रियाज अहमद पैरे, शारिक बशीर, यूनिस माजिद, जाहिद हुसैन शेख. ये हमारे बीटेक के स्टूडेंट्स हैं जो हमेशा एकेडमिकली ही नहीं स्ट्रॉन्ग हैं, बट इनोवेशंस, एकेडमिक्स के साथ साथ प्लेसमेंट्स और जो इनोवेशंस हैं उसमें भी काफ़ी नाम इन्होंने आगे किया है, चाहे वो कॉपीराइट की बात हो, चाहे और इनोवेशंस हो. इसी के साथ आगे जाहिद जावेद मट्टू, जमरूद अहमद मलिक, जुबैर उल इस्लाम, वंदना कुमारी, दीपावली, नरेंद्र कौर, बबलू कुमार, प्रेम राज, शाकिब शफी मीर, अक्षय कुमार, जावेद मुनीर. प्लीज़ तालियां बजाइए अपने दोस्तों के लिए. It's a proud day for all of us as faculty member, as student, as the worthy parents. ये सारे स्टूडेंट्स हमारे बीटेक के टॉपर थे. इसके बाद मैं बीबीए बैच के नाम अनाउंस करूंगी. सब स्टूडेंट के लिए तालियां बजती रहनी चाहिए. हमें पता है कि तालियों से हमारी हेल्थ भी सही रहती है, तो तालियां बजती रहनी चाहिए. प्लीज़ कीप साइलेंस, मेंटेन द साइलेंस. और जिस जगह से आप आए हैं आप वहीं पे बैठेंगे. आकाशदीप फ्रॉम बीबीए बैच, मोहम्मद फैज़ आलम, सुब्रत बशीर, उबैद बिन सिद्दीक, आमिर अहमद पैरी, आकिब अहमद शेख, नाज़ीर अहमद मगरे, ओवैस यूसुफ, रवीस अहमद भट्ट, शौची कुमार, यावर रशीद, जाहिद फारूक, अग्निदेव मॉटन, विवेक. ये हमारे बीएड के टॉपर स्टूडेंट्स हैं. इसके बाद मैं अनाउंस करूंगी बीएड बैच के स्टूडेंट्स.
प्रियंका रावत, ज्योति शर्मा, सरिता, उर्वशी नेगी, मनप्रीत कौर, गुरप्रीत कौर, बेअंत कौर, तालियां बजती रहनी चाहिए, नीरू, रमनप्रीत कौर, अजय कुमार, ये हमारे बीएड के टॉपर स्टूडेंट्स हैं। Clap students. When you clap, you show some energy, some enthusiasm, and when they are your friends, it gets 10 times, folded. इसके बाद हमारे लॉ के स्टूडेंट एलएलबी यशपाल, राकेश, करण, राजविंदर। A big round of applause to the students. एक बार अपने सबके लिए क्लैपिंग। अब मैं बीसीए बैच के नाम अनाउंस करूंगी। अमनदीप कौर, हरप्रीत सिंह, नितेश कुमार, रुपिंदर सिंह, रमनदीप कौर, राहुल पासवान, दिव्यम शर्मा, अमनीत कौर, दलबीर कौर। तालियां बजाते रहे स्टूडेंट, आपको हर स्टूडेंट में ताली बजानी है। बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स जो टॉपर हैं, मधु, अश्विनी। इसके बाद बीए के स्टूडेंट्स जो हमारे बीए के टॉपर हैं, पूनम, राजविंदर कौर, संदीप कौर, सतनाम सिंह, संदीप कौर, सुखपाल सिंह, दलबीर कौर, मनप्रीत कौर, परमिंदर कौर, सुखदीप सिंह, पवना रानी, पूजा रानी। इसी के साथ बीकॉम और बीसीए सिमरनदीप कौर, रॉबिन, आंचल शर्मा, मोहम्मद नावीद बख्शी।
Big round of applause. Thank you very much, sir. You may please come on the dais. Congratulations, students. Congratulations, proud parents and faculty members too. Now, I would like to request Professor Dr. Gurinder Pal Singh, sir, Registrar, MRS PTU Bathinda, to interact with the students for 1-2 minutes. It would be our privilege, sir. Thank you. डॉक्टर अंशु कटारिया जी, श्री राजीव गुप्ता जी, मोहम्मद हारून मलिक जी, डॉक्टर प्रवीण कटारिया जी, and all of the students, faculty members of Aryan Group. This group is a unique group because we have two types of education. One is government controlled, owned and sponsored. Other is controlled by the government and operated by the private players. In those private sector, we have most of the institutions are run by political people or a big businessman, and they are not physically, mentally and emotionally involved in the institutions. But this group is controlled and operated as a family by academicians who are part of this institution. So this institution is like an institution in which the problems are there. Problems are tackled at the starting phase, and it doesn't cause any problem to the students. And going through this ceremony of awarding the honor to different students, it was great privilege to see the students from different parts of India. These institutions are really a symbol in which we are one. And when you are educated in an atmosphere where you have people from different cultures, you learn a lot. And when you are in this stage, your maximum
change takes place. So going through all these years, whatever you have gained is a stepping stone towards your next phase. You have achieved a step ahead in your life. So you should be prepared for the next life to come. Because earlier graduation was end of your education. But now graduation is one of the step of your education and your life. If you go to European countries, people go to these universities at the age of 50, 55, 60, 65. And this trend is now coming to our country also. As we have two of the senior bureaucrats here, earlier all the bureaucrats had only one thing to do, was administration. Now it's part of their service. They have to keep themselves updated, and for this they are into regular courses. And by this regular courses, they update themselves, because the department they are going to head is changing very fast. So they have to change first. So it is, we have to learn from this. You have to keep on learning. And whenever you pass out from this, you go to any industry, any field, you keep on working, but never stop learning. The new education policy, again, is an indication or step towards people to keep on learning. Because in new education policy, you have the credit system. Any credit earned by you is preserved by you, and you can join any course, maybe after 2 years, 3 years, you can change to any stream. Earlier it was after 10th, I have gone in for medical, I had to stick to medical. I had gone to engineering, I had to stick to that. But now no. If you go through the new education policy, it is open, and you will be surprised to see in coming years the people with medical background going in for literature, and people from literature going in for medical or engineering field. And by this, we all have to change. So with technology, you have to adapt yourself. Earlier, when we were young, the fashion started from Bombay. It traveled to Delhi in 2 to 3 years. From Delhi, it traveled to interior parts of Punjab, Haryana in 5 years. So the difference between fashion from Bombay to a remote village was 10 years. Now it is 1 day. By the evening, the fashion is known out throughout world. This is happening in the remotest part also. So you have to adopt to that changes, and for that you have to update yourself. So again, I congratulate all of the graduating students and their parents and their teachers. All of you should remember, it is only your parents and your teachers who are proud of you if you do better than them. So you should always be thankful to your teachers and parents. Jai Hind, Jai Punjab. Thank you so much, sir, for addressing the students. मैं अब रिक्वेस्ट करना चाहूँगी हारून मलिक सर को कि वो आएँ और 1 मिनट के लिए स्टूडेंट को एड्रेस करें, क्योंकि हमारे जो चीफ गेस्ट हैं गवर्नर सर वो अभी आने वाले हैं, तो 1-1 मिनट के लिए प्लीज़ आप एड्रेस करें. Respected Gupta sir, Dr. Anshu Kataria ji, and Madam Kataria, Gurdeep Pal Singh,
Registrar, and dear students who have graduated today. It's really a great honor for me to be here with you on this occasion, and I am privileged, I feel privileged that I have been called with you young people around. In the first place, I would like to thank Dr. Kataria for holding this 11th convocation of his college here. It's an exciting moment for all of you that you have graduated today. It's not just an exciting moment that you have completed a level of education, but I know it must have taken a lot of hard work from you. I understand you are from different backgrounds, you are from different areas. The college has provided you an opportunity to intermix here, to form new bonds and relationships. Although you come from diverse relationships, diverse societies, diverse backgrounds, I understand that many students hail from my state, my UT of J&K. I know Punjab is our neighbor, and as a good neighbor, they have been always accommodative to our youth. They have been providing skills, upgrading our skills in many fields. We are thankful to the institution and to the state as well. It's not today, but it has a long history. Our medical college came up in 1959, first medical college in Srinagar, in J&K. Our students then used to come to what we used to call it the medical college, PG medical college in Chandigarh. And even after starting the medical college there, our students used to come for post-graduation to this place. Education, you know, is polycentric. We don't believe in J&K that education should come from one place only. We believe that it should be transmitted from many centers, many cities, many places. Its value adds up. And its transmission from all sides makes a diverse society merge into one. We in J&K also believe that the knowledge society we are going to form will not be based in Srinagar, Jammu alone. We need institutional help from all across the country,
and in fact from outside the country also. And we are ready to take it. I am proud that many of my children, many of my younger generation people are accepting this and coming out in large numbers to study elsewhere in the country. I want that equally people from other areas should come and visit my place for similar opportunities. We do have great institutions and you can benefit a lot from there. As the time is running out, I will once again thank the college, its people around, and wish you all the best in your future endeavors. Wish you great success. You have to start a new journey. The only thing I will say to you, that whole world will say, India produces 1 lakh engineers. Where is your place? But I want to tell you, believe me, the whole top is vacant. The competition is at lower level. At higher level, there's no competition at all. You go up the ladder, you will find no competition and you will be absorbed. There are numerous opportunities in this country and you can find your place very well, but please do not stop. Thank you. थैंक यू हरुण सर. हरुण सर ने कल 4:20 पे श्रीनगर से बाय रोड अपना सफ़र किया, पूरी रात जर्नी करके सारे रात सफ़र किया और आज सबसे पहले यहाँ पर पहुँचे. एक बार फिर जोरदार तालियां जरूर सर के लिए. तो हमारे आज के मुख्य मेहमान हरियाणा के राज्यपाल हमारे बीच पहुँचने वाले हैं और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि उनके आने से पहले राजीव सर 2 मिनट बच्चों को जो आशीर्वाद दें. राजीव सर हमारे पंजाब के जो बोर्ड है PSBT उसके सेक्रेटरी भी हैं और पंजाब के जितने भी कॉलेजेस हैं DPI उनको हेड कर रहे हैं डिपार्टमेंट को. एक बार जोरदार तालियां राजीव के साथ. राजीव सर प्लीज. अरुण सर विल गो आउटसाइड टू रिसीव. Good morning everyone. Mohammad Harun Malik ji, Dr. Anshu Kataria, Dr. Gurinder Pal Singh, Dr. Parveen Kataria ji, distinguished guests and dear students. First of all, on this occasion I would like to congratulate Dr. Anshu Kataria on this 11th convocation, and I would also like to place my appreciation on record for the energy, enthusiasm, entrepreneurial skills, as well as the employment opportunities which Aryan Group is providing to the students. I also congratulate all the students for receiving their degrees today and all the teachers and mentors whose hard work has paid off today. Dear students, as you receive your degrees today, the real challenge lies in the future, as from now on you are going to the actual field of work on your own without having your mentors and teachers around. More than the degrees, I am sure that the knowledge and values you have imbibed here will guide you wherever your destiny will take you. The responsibility of building a great and a prosperous nation rests on your shoulders. As youth of this country, you are going to be the drivers of our economy and development. One thing you should make sure is that you should become a change in the society. More so, many of you have come from the not so privileged areas of our country, so you should try to become an agent of change in all those areas. I wish the Aryan groups
all the glory and success, and I once again congratulate you on this convocation day. I wish you all the very best. Thank you. Thank you very much, sir, for addressing the students, for enlightening them. So soon, the chief guest of the day, Honorable Governor, His Excellency Shri Bandaru Dattatreya ji would be here, and whenever he enters the convocation hall, you all will rise and जैसे ही सर बैठेंगे आप अपनी सीट्स लेंगे और पूरा साइलेंस बनाए रखेंगे, पूरा डिसिप्लिन बनाए रखेंगे, कोई मूवमेंट एक्स्ट्रा नहीं करेंगे और इसी के साथ वो कुछ जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको डिग्री कॉन्फर करेंगे। हमारी जो सीक्वेंस है वो इवेंट की जो अब होगी वो लैंप लाइटिंग के साथ सरस्वती वंदना होगी और उसके बाद जो डिग्रीज़ हैं वो अवार्ड की जाएंगी कॉन्वोकेशन एड्रेस के साथ। सो आई मस्ट से दिस डे इज़ द सेलिब्रेशन। आज के बाद आप जब भी जाएंगे आप आर्यंस का एक ब्रांड होंगे, आर्यंस ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के साथ आपका नाम जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे आप अपनी लाइफ में एक्सेल करते चले जाएंगे ये हमारे लिए बहुत ही प्राउड की बात होगी, बहुत ही एक जो है हमारे लिए एस्टीम की बात होगी और हम हमेशा चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे जुड़े रहें और उनके अचीवमेंट जो है वो इनडायरेक्टली कॉलेज की, उनके टीचर्स की, उनके पेरेंट्स की अचीवमेंट तो होती ही हैं, बट कॉलेज का जो है रोल वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके पेरेंट्स का हार्ड वर्क है इसके पीछे जो आप ये डे आप आज जो है यहाँ पे हैं और अपनी डिग्रीज को ले रहे हैं। हमारी यही विशेष रहेंगी कि आप लोग यहाँ से जैसे ही जाते हैं, कुछ लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, कुछ लोग अपनी पीजीज या डॉक्टरेट करेंगे, कुछ और टेक्निकल कोर्सेज़ को जो है वो परस्यू कर रहे हैं, तो हमारी बेस्ट विशेस रहेंगी और जो सीनियर पर्सन्स हैं उनकी आपके लिए ब्लेसिंग्स रहेंगी, हमेशा आपके टीचर्स की ब्लेसिंग रहेंगी कि आप जहाँ पे भी जाएं अपनी फील्ड में आप एक्सीलेंट या एक्सेल जो आपकी जर्नी हो वो रहे। आप हमेशा अपने पेरेंट्स, अपने नेटिव प्लेस, अपने स्टेट, अपनी कंट्री के लिए ग्लोरी लाएं, नॉट ओनली नेशनली एज वेल एज इंटरनेशनली। सो आपके लिए ये बहुत एक डेज है, आपके दिमाग में कई सपने चल रहे हैं कि इसके बाद आपने सेलिब्रेट करना है, अपने दोस्तों को मिलना है। तो हमने पहले भी आपको बोला था कि यू कैन गेट अटैच विद दी आर्यंस ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ऑन गूगल, लिंक जो आपको बताया गया है, तो आप उस पर अपनी फोटोग्राफ्स जो हैं वो टैग कर सकते हैं और साथ ही आपके रिव्यू, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा वो आप हमेशा शेयर कर सकते हैं। तो जल्दी ही 5 मिनट्स में जो गवर्नर सर हैं वो वेन्यू पे होंगे और आप सब लोगों को जो है एड्रेस करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी हमारी आईटी टीम से कि वो कुछ कॉलेज की वीडियोस जो हैं वो प्ले करें। थैंक यू। जब भी गवर्नर सर आएँ आप प्लीज़ डिसिप्लिन का ध्यान रखें, ज़्यादा मूवमेंट ना हो, आप बिल्कुल बात ना करें अपने फ्रेंड से। जस्ट 1 आवर के बाद आपको टाइम मिलेगा सेलिब्रेट करने का, अपने जो भी आपने बातें शेयर विद ऑनरेबल गवर्नर Shri Rajiv Kumar Gupta sir, IAS Secretary, Punjab State Board of Technical Education, please stand. Please be seated on seat. So Shriman Bandaru Dattatreya ji. Okay, yes. So along with him, Shri Rajiv Gupta sir, IAS Secretary, जिनको आपने सुना भी है. Then Mohammad Harun Malik sir, जो Special Secretary हैं Tribal Affairs Department के. With the Gurinder Pal Singh sir, Registrar, MRSPTU Batinda, the Chairman, Arens Group, Dr. Anshu Kataria, Director General, Dr. Praveen Kataria, Professor B.S. Sidhu sir, Director RN Group of Colleges, along with some principal and director. They are just coming in the this convocation hall. So आप अपना एक discipline बनाए रखें. Please be silent and the day is yours. So we are worthy enough that His Excellency is here with us and he has consented to be us for this day, and he has arrived soon. In 1 minute he is going to enter the hall. So जैसे ही वो आए और अपना सीट लें, आप उसके बाद जो है अपनी सीट्स लेंगे. So it's a proud moment for us that all the dignitaries, the chief guest and the worthy guest of honor, they are again with us and they will confer upon the degrees to the meritorious student, the topper of this जो आपके batches हैं, उनके जो toppers हैं. तो please. So अभी आप अपनी सीट्स ले सकते हैं. 5 minutes लग जाएंगे. Sorry for that. आप अपनी सीट्स ले सकते हैं.
सो प्लीज़ आप अपनी वीडियोस प्ले कर दें तब तक। सो ये आप सोच लीजिए कि हमारी एक और रिहर्सल थी, आपको ये आपकी रिहर्सल होगी। तो जैसे ही अब आपको अगला मैसेज आता है, आप जिस तरह से बिल्कुल ओबीडियंट स्टूडेंट्स की तरह खड़े थे, ऑब्वियसली आप स्टूडेंट लाइफ से अभी पास आउट होके ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट बने हैं, तो यू हैव शोन वेरी गुड योर गुड सेल्फ ऑफ यू, एंड आप जो है इसी तरह से खड़े होंगे। इसको आप रिहर्सल मान लीजिए कॉन्वोकेशन की ही। तो जैसे हमें डायरेक्शन मिली है आगे से, हम आपको वैसे ही पास कर रहे हैं, तो इसको आप रिहर्सल मान के चलिए। सो प्लीज प्ले द वीडियो। आप जो है हर मैदान फतेह। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। 14-day loom break. That's a world record.
Yes, so please, the governor, Innovation. sir. We are ready. 1 minute. जो वो दूर होंगे हम मुझे बता दें। तो जो हमारे लिए गर्व की बात है, एक सौभाग्यशाली हमारे लिए दिन है कि हरियाणा गवर्नर जो हैं अभी 1-2 मिनट में आने वाले हैं। वो जो हमारी पल है जिसका हम काफ़ी दिनों से वेट कर रहे हैं, आप काफ़ी दिनों से एड्स देख रहे हैं, सोशल मीडिया देख रहे हैं, वो जल्दी ही जो है आने वाला है। और हम उनकी रिस्पेक्ट के लिए, जैसे आपने पहले रिहर्सल की थी, अब हम फाइनली खड़े होंगे और उनका वेलकम करेंगे। तो अब हाँ जी, आप खड़े हो जाएं। I would like to request you please stand as the academic procession consisting of His Excellency Governor Haryana, His Excellency Shri Bandaru Dattatreya ji, along with Shri Rajiv Kumar Gupta, IAS Secretary Punjab State Board of Technical Education, and Shri Mr. Muhammad Harun Malik, Special Secretary Tribal Affairs Department, with Dr. Gurinder Pal Singh Barar, Registrar MRSPTU Bhatinda, and respected Chairman RN's Group of Colleges Dr. Anshu Kataria, with Dr. Praveen Kataria, Director General RN's Group, Professor B.S. Sidhu, Director of RN's Group of Colleges, along with Director Principals, have entered the convocation hall. So please keep on standing. We welcome Honorable Governor Sir, His Excellency Shri Bandaru Dattatreya ji in this convocation. Sir, it's our privilege that you are with us. We are really blessed that today you are here with us to bless the students as well. Thank you very much. महामहिम राज्यपाल जी का हार्दिक अभिनंदन। आपका आरएन्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में स्वागत है। Now I would like to request Dr. Anshu Kataria, Chairman RN Group of Colleges, to present bouquet as a token of respect to Honorable Governor Sir. Thank you very much. To begin this auspicious occasion, may I invite all the dignitaries on dais for the lamp lighting to invoke the Almighty, and मैं हमारे मुख्य अतिथि और गणमान्य व्यक्तियों से अनुरोध करना चाहती हूँ कि वे दीप प्रज्वलित कर इस समारोह का शुभारंभ करें। हम इस दीपक को जलाकर ज्ञान की देवी के आशीर्वाद के लिए उनकी सराहना करना चाहेंगे। हम प्रार्थना करते हैं कि वह हमें अतिरिक्त शैक्षणिक भविष्य की समृद्धि प्रदान करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धन्यवाद सर। आज हमारे लिए बहुत गर्व का क्षण है और हम बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि आज हमें ब्लेस करने के लिए महामहिम राज्यपाल जी हमारे साथ हैं। धन्यवाद सर।
अब मैं हमारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वो अपने आप को सेटल कर लें सरस्वती वंदना के लिए। जैसे ही महामहिम राज्यपाल अपनी सीट लेते हैं, आप सरस्वती वंदना की शुरुआत कर सकते हैं।
Thank you very much. You can take your seats. Now, I would like to request our IT department to play a video as introduction of Honorable Governor, sir. And I would like to request Dr. Anshu Kataria, Chairman, RN Group of Colleges, to give a opening remarks and welcome address. आर्यंस की 11वीं कन्वोकेशन में हरियाणा के राज्यपाल माननीय बंडारू दत्तात्रेय का स्वागत करता हूँ। एक बार जोरदार तालियों से सबका स्वागत कीजिए। कल 7 जून को हमारा 16th फाउंडेशन डे भी है। हम 15 साल की यात्रा पूरी करके हम 16th ईयर में प्रवेश कर रहे हैं और इस मौके पे हमें सर की ब्लेसिंग मिली। एक बार फिर सर के लिए जोरदार तालियां। वी आर वेरी लकी टू हैव यू ऑन आवर 16th फाउंडेशन डे। 2007 में 1 एकड़ से 100 बच्चों से जो यात्रा स्टार्ट हुई है, जर्नी स्टार्ट हुई, ये सफ़र स्टार्ट हुआ। हमने 1 एकड़ से राजपुरा के पास, राजपुरा बनूड़ बेल्ट जो एक एजुकेशन हब बन चुकी है इस रीजन की, वहाँ से हमने स्टार्ट किया। एक बिज़नेस स्कूल से स्टार्ट किया और उसके बाद लगातार हर साल बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी होती रही और कॉलेजेस भी ऐड होते रहे। और आज जब हम 15 साल पूरे कर चुके हैं, आज आर्यंस में 8 डिफरेंट कॉलेजेस और मोर देन 3500 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। मोर देन 20 स्टेट्स अगर हम बात करें तो ना सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि 20 डिफरेंट स्टेट्स और कुछ नेपाल से बच्चे भी पढ़ रहे हैं। और जो बच्चों का जो फोकस है वो सिर्फ मार्क्स लेने पे नहीं है। जो बच्चों ने पास्ट में इनोवेशंस की हैं, मैं माननीय मुख्य मेहमान जी के ध्यान में लाना चाहूँगा कि जो हमारे पास जम्मू कश्मीर के बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं और जब वो वैली से आते हैं, एक डिस्टर्ब एरिया से आते हैं, तो उनके मन में होता है कि हम अपनी वैली के लिए कुछ करें, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करें, अपने गाँव के लिए कुछ करें। वहाँ डल लेक है। डल लेक पे जो शिकारा चलती हैं, वो शिकारा बुकिंग के लिए एक उन बच्चों ने ऐप बनाया। जैसे हम टैक्सी बुक करवाते हैं तो उबर या ओला यूज़ करते हैं, वैसे ही आर्यंस के बच्चों ने एक ऐप बनाया, शिकारा ऐप, जिसको लोग यूज़ करेंगे। अब उसमें जो जितने भी घाट हैं वहाँ पर, जितने भी गेट्स हैं वहाँ पर जितने शिकाराज हैं, उसमें हर शिकारा ऑनर की इन्फॉर्मेशन उसमें उन्होंने डाली है। और मैं शेयर करना चाहूँगा कि 10 दिन पहले भारत सरकार ने आर्यंस को उसका कॉपीराइट ग्रांट कर दिया है। इतना ही नहीं, जो डिफरेंट बच्चों ने जो प्रोजेक्ट्स किए हैं, मैं सबके पास ये जो ब्रोशर है इसमें बच्चों की इनोवेशंस के बारे में मेंशन है। बच्चों ने हमारे पास, क्योंकि नर्सिंग डिवीज़न भी है, हमारे पास इंजीनियरिंग भी है, हमारे नर्सिंग के बच्चों ने मिलके और इंजीनियरिंग के बच्चों ने मिलके एक ऐसा ग्लव तैयार किया है जिससे अगर कोई पेशेंट अकेला है घर में, कोई बूढ़े माँ बाप हैं या कोई पेशेंट ऐसा है जिसके पास कोई गार्डियन नहीं है, वो जो ग्लव है उस पर अगर बाई चांस किसी का बीपी पल्स हाई जाता है या बहुत लो जाता है तो ऑटोमेटिकली उसमें ऐसे सेंसर्स लगे हैं कि डॉक्टर के पास और पेरेंट्स का या गार्डियन जो बाहर गया घर से, उसके पास उसी वक्त SMS चला जाएगा कि इस पेशेंट का स्टेटस ये है। ये आर्यंस के बच्चों ने ऐसी इन्वेशन की है। बहुत सारे हमारे पास मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं, बिहार के मुस्लिम बच्चे बहुत पढ़ते हैं। और जब हम रमज़ान रखते हैं, रोज़े रखते हैं, तो रोज़ों के दौरान सुबह जब सहरी करनी होती है या शाम को इफ्तारी करनी होती है तो हर बार चेक करना पड़ता है। बच्चे पेपर चेक करते हैं या लोग देखते हैं कि कितने बजे करना है। हमारी ही लड़कियों ने, इंजीनियरिंग की लड़कियों ने एक ऐसा रमज़ान ऐप बनाया है कि आप उस ऐप को अगर डाउनलोड कर लेंगे तो आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। वो ऑटोमेटिकली जैसे जैसे टाइम चेंज होता रहेगा वैसे वैसे सहरी इफ्तार के हिसाब से उसका अलार्म का टाइम भी चेंज होता रहेगा। ऐसी इनोवेशंस हमारे बच्चों ने करी हैं। इससे पहले हरियाणा के राज्यपाल जब सोलंकी साहब थे तो उन्होंने हमारे ही बच्चों का एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, बच्चों को ब्लेसिंग्स दी थी। उसमें भी बहुत सारे हम देखते हैं सिविल इंजीनियरिंग के बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं और जब कोई किसी माइन में, किसी टनल में, किसी जगह कोई डिज़ास्टर होता है, किसी बिल्डिंग में कुछ ऐसा दुर्घटना हो गई तो हमें इवैक्यूएट करने में, लोगों को रेस्क्यू करने में, उनको हेल्प पहुँचाने में दिक्कत आती है। हमारे बच्चों ने एक ऐसा सेफ्टी हेलमेट बनाया है जो बहुत लो कॉस्ट सेफ्टी हेलमेट है। वो GPS और GPRS के बेसिस पे उसको जो कोई ऐसा डिज़ास्टर होगा तो वो
जो जब उस पर हेलमेट पे एक्सेस प्रेशर आएगा किसी भी डिज़ास्टर का, तो ऑटोमेटिकली SMS अलर्ट जाएगा और साथ में अगर कोई वैक्यूएट करना है तो उसकी लोकेशन ईजिली ट्रेस आउट की जा सकती है। ये भी हमारे जो पहले सोलंकी साहब राज्यपाल थे उन्होंने लॉन्च किया था बच्चों को। ऐसे ही डल लेक में बहुत सारी शिकारा चलती हैं, बट हमारे बच्चों को श्रेय जाता है सबसे पहली सोलर शिकारा जो सोलर बोट है वो भी आरएंस के बच्चों ने कश्मीर में वहाँ पर करी है। हमारे पास लॉ कॉलेज भी है, और लॉ कॉलेज में भी क्या होता है देखते हैं, जब इनोवेशंस की हम बात करते हैं तो सबसे बड़ी समस्या क्या बताते हैं कि जब कोर्ट में वकील जाता है तो उसको नेक्स्ट डेट मिलती है, और जब नेक्स्ट डेट मिलती है उसके पास जब ज़्यादा केस होते हैं उसके पास इतनी तारीखें होती हैं कि उसको तारीखों का हिसाब करना मुश्किल हो जाता है। हमारे बच्चों ने, लॉ और इंजीनियरिंग के बच्चों ने मिलकर एक ई मुंशी ऐप किया तैयार। वो ई मुंशी ऐप में क्या है कि जो उसका ऐप को अगर डाउनलोड कर लेंगे तो उसको बार बार अपना, नहीं तो पहले वकील क्या करते हैं, एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं, एक डॉक्यूमेंट मेंटेन करते हैं जिसमें वो उनका जो फोल्डर होता है उसमें हर बार नेक्स्ट डेट लिखते हैं। तो हमारे जो इंजीनियरिंग के बच्चे हैं आर्यंस के और जो लॉ के बच्चे हैं, इन्होंने एक ऐसा ऐप तैयार किया है, ई मुंशी ऐप, जिसके डाउनलोड करने के बाद एडवोकेट को बार बार डेट्स के लिए उसको नोट नहीं करना पड़ेगा। वो ई मुंशी ऐप जो है वो डाउनलोड अगर कर लेंगे तो वो अपने आप ही उसको अलार्म उनको मिलेगा उस दिन की, आज आपकी फलाने डेट की, जो फलाने कोर्ट केस की डेट है। तो ये सारी इनोवेशंस मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं सर वो डिफरेंट इनोवेशंस के लिए, डिफरेंट स्टार्टअप्स के लिए काम करते हैं। और हमें जब पिछले सप्ताह हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कॉपीराइट दिया तो हमें बहुत खुशी हुई, हमने बच्चों को और इंस्पायर किया, और 2-3 नए प्रोजेक्ट हम जल्दी लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें एक सी बिन, जैसे सुखना लेक है, डल लेक है और बहुत सारी लेक्स हैं, और उसकी क्लीनिंग को लेके बहुत समस्या रहती है। क्लीनिंग के लिए बहुत सारे फंड्स गवर्नमेंट के स्पेंड होते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करने पड़ते हैं, बहुत सारी मशीन्स रिक्वायर्ड हैं। हमारे बच्चे एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जिसको सी बिन का नाम हमने दिया है। राजीव सर भी हमारे बैठे हुए हैं, कश्मीर से भी हमारे पास अरुण सर बैठे हैं। मैं चाहूँगा कि इन डिपार्टमेंट्स के सहयोग से हम वो प्रोजेक्ट्स को आगे लेके जाएं, उन बच्चों को सपोर्ट करें, उन बच्चों को फंडिंग करें। उस सी बिन में क्या है कि उसके लिए आपको मैनुअल कुछ नहीं करना है। उन बच्चों ने सी बिन को तैयार करके उसमें वो सोलर से लिंक कर देंगे, सोलर सिस्टम से, और वो बिन हम किसी भी लेक पे, सुखना लेक है चाहे डल लेक है, उसमें छोड़ देंगे। वो ऑटोमेटिकली सोलर एनर्जी से चलता जाएगा और वो जितना गार्बेज है वो गैदर करता जाएगा। उसमें छोटी सी मोटर लगाई है बच्चों ने, वो गैदर करता जाएगा और उसके बाद अपने आप तट पे आ जाएगा। वहाँ पर जब वो फिल हो जाएगा उसके बाद मैनुअल इंटरवेंशन से उसको क्लीन करके उसको दोबारा फिर पानी में छोड़ा जा सकता है। तो ऐसी इनोवेशंस की है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, हमारे पास समय कम है। एक बार फिर मैं माननीय राज्यपाल जी का हमारे आर्यंस के इस 11वीं कन्वोकेशन में स्वागत करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much, sir. Please play the video. आदरणीय महामहिम राज्यपाल श्रीमान बंडारू दत्तात्रेय जी, आपका आर्यंस ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में स्वागत है। आप वर्तमान में हरियाणा के राज्यपाल हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीमान दत्तात्रेय जी को पहली बार 1991 में 10वीं लोकसभा के लिए चुना गया। साल 2014 में वह अपनी सिकंदराबाद सीट से चुनाव जीते और मोदी सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री श्रम एवं रोजगार बनाए गए। अति सम्माननीय श्री बंडारू दत्तात्रेय जी एक जाने माने नेता हैं। इनका जन्म आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में 12 जून 1947 को हुआ। श्रीमान को इनके गृह क्षेत्र तेलंगाना में पीपल्स लीडर के नाम से भी जाना जाता है। श्रीमान अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण पर संसदीय समिति के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आप स्वैच्छिक संगठनों के महासचिव, संयुक्त सचिव, एपी चक्रवात समिति के सदस्य हैं। आप तंबाकू बोर्ड, नारियल बोर्ड, रेलवे सलाहकार समिति के सदस्य भी थे। आर्यंस ग्रुप ऑफ कॉलेजेस आज बहुत ही गर्वित और सौभाग्यशाली महसूस कर रहा है कि आज हमारे बीच महामहिम राज्यपाल इस 11वें दीक्षांत समारोह में उपस्थित हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन। धन्यवाद। Thank you very much. So it's the time. So it's the time for the annual report. But to cut short that, I have made a video for that. So I, Dr. Garima Thakur, Deputy Director here at Aryan Group of Colleges, I am presenting before you the annual report of the college in the form of a video. So please the video. Please play the video.
This is all about the promoters of the group, the new courses which have been added, the job and placement जो हमारे placement जो fair होते हैं, job fair होते हैं, our university merit holder, the award and the achievements, the academic activities, the corporate social responsibilities, etc., and the cultural activities as well as, plus the J&K projects. So these are the university merit holder of RN's group of colleges who have bagged the gold, silver medal in the university merit list at MRS PTU, IKG PTU as well as Punjab University, Patiala. So this is the award which we have got for the RN's College of Law, best private law college in the region, in the Punjab region itself. So it's the privilege when Lieutenant Governor J.K. Sinha, Honorable Governor J&K has launched the Your Happiness app along with the Dr. Anshu Kataria sir. So various seminars and webinars, they were held around more than 150 webinars we held around this COVID pandemic when the students were at home, and we conducted many sessions for that. The quiz and talent hunt, they are the routine activities at the RNs. So this is our corporate social responsibilities. We are doing continuously that COVID testing, the legal awareness camp, the nursing point of view, the healthcare camps near about 3-4 villages. We have adopted 3-4 villages, Alampur, Nepra and Thua, which are surrounding the college itself. The cultural activities, various Bollywood actors and the Bollywood actors, they have been coming from since many years in the college itself to enthrall the students in the various activities in Chandigarh as well as in the campus. We have conducted many faculty development program in this 1 year, which was sponsored by All India Council of Technical Education as well as ISTE along with MRS PTU Bathinda, and by RN's College of Pharmacy as well as RN's College of Engineering. So at the glimpse they are for Shikara race, which were held in the J&K during the month of December, and this was the effort of the RN's JK students to promote the tourism. Thank you very much, sir. Now I would like to request, मैं महामहिम राज्यपाल जी से अनुरोध करना चाहूँगी कि वो मंच पर आएं और हमारे छात्रों को अपने अभिभाषण से संबोधित करें. धन्यवाद सर. आज मुझे आर्यन कॉलेज के दीक्षांत समारोह में आकर आपसे मिलने से मुझे बहुत खुशी लगी है. आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ. आज इस कार्यक्रम में जो हमारे प्रमुख बैठे हुए श्री राजीव कुमार गुप्ता जी, इज IAS सेक्रेटरी PSBT चंडीगढ़, श्री मोहम्मद मरून मालिक जी, IAS स्पेशल सेक्रेटरी ट्राइबल अफेयर्स जम्मू कश्मीर, डॉक्टर अंशु कटारिया जी, चेयरमैन आर्यन ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, डॉक्टर प्रवीण कटारिया जी, DG आर्यन ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, डॉक्टर गिरिंदरपाल सिंह बराड़ जी, रजिस्ट्रार महाराजा रंजीत सिंह पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी बठिंडा पंजाब, और सभी प्रोफेसर्स, टीचर्स, मेंबर्स ऑफ मीडिया और विद्यार्थी
भाई और बहनों, जैसा मैंने पहले ही कहा था, ये आर्यन ग्रुप का जो नाम है मुझे बहुत पसंद आई है, इसलिए इसमें बहुत ही बड़ा अर्थ है, मीनिंग है। आर्यन मीन्स इट इज़ मोर कल्चर्ड, मोर सिविलाइज्ड। इतना बड़ा जो नाम जो है, मैं विश्वास करूंगा जो भी विद्यार्थी इस कॉलेज से निकलेगा वो उतना ही मोर सिविलाइज्ड एंड मोर नॉलेजेबल पर्सन वो निकल कर बाहर आएगा, ऐसा मैं विश्वास करूँ। जैसे नाम है वैसे रहना चाहिए। नाम एक है और हमारा काम एक है, वैसा न रहना चाहिए। नाम एक रहना, काम भी एक रहना, वही जो है दुनिया को पसंद होती है। तो इसलिए मेरा और एक बार आप सब लोगों से, विद्यार्थी आज डिग्री प्राप्त करके आप सर्टिफिकेट लेके जाने के बाद आप अपने जीवन के लिए सोचेंगे, लेकिन ये सोचिए कि मैं आर्यन कॉलेज का एक सिविलाइज्ड आदमी हूँ, वहाँ से निकल के आया हूँ, ये नहीं बोलना चाहिए, कभी नहीं बोलना चाहिए। इसको आप लोग ध्यान में रखना चाहिए। और इस नाटक का ये उत्सव में जो मैं भाग लेकर विद्यार्थी आप लोग कॉलेज के, मुझे और एक खुशी है, आर्यन उन कॉलेजों में से एक है जहाँ से सभी संचालक शिक्षावादी लोग हैं। ऑल आर 20 years, 30 years experienced professors in this management. This is the best college in the northern parts of India. और आर्यन्स ग्रुप ऑफ कॉलेज के इस कार्यक्रम में देश के विभिन्न राज्यों से संबंधित 113 विद्यार्थियों को डिग्री दी गई है, जिनमें 75 छात्र और 38 छात्राएं शामिल हैं। इसके लिए सभी विद्यार्थी, अभिभावकों तथा शिक्षकगण को बधाई देता हूँ। जैसा कि बताया गया कि मात्र 100 विद्यार्थी से शुरू होने वाला आर्यन ग्रुप के 8 कॉलेजों में आज करीब 4000 युवा शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। आज जिन छात्राओं ने विभिन्न विषयों में डिग्रियां प्राप्त की है, उनके सामने कैरियर को लेकर विकल्प निर्धारित है, परंतु आज आप जैसे ही संस्था से बाहर निकलेंगे तो आपके सामने बहु विकल्प होंगे, लेकिन आपको हमेशा अपनी परिस्थितियों से और क्षमताओं के आधार पर ही निर्णय लेना चाहिए। आपके महाविद्यालयों में इंजीनियरिंग, वकालत, मैनेजमेंट, नर्सिंग, फार्मेसी एंड पैरामेडिकल जैसे महत्वपूर्ण विषयों की शिक्षा प्रदान की जा रही है। ये विषय समाज के उत्थान हेतु बहुत उपयोगी है, परंतु आज टेक्नोलॉजी, तकनीकी हमारी कल्पना से बहुत आगे चल रही है। तो इसलिए मैं विद्यार्थियों से बार बार कहता हूँ कि आप लोग अपडेट रहना चाहिए। जितना अपडेट रहेंगे, टेक्नोलॉजी इज़ फास्ट चेंजिंग। टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही दुनिया बदल रही है। जिस देश टेक्नोलॉजी से ज़्यादा आगे बढ़ेगा, वही देश दुनिया में सबसे आगे बढ़ेगा। तो इसलिए टेक्नोलॉजी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट इज इनोवेशन। नेक्स्ट इज इनोवेशन, नवाचार। इनोवेशन। मुझे तो बहुत खुशी है, आपके कॉलेज इनोवेशन में एक मॉडल के रूप में ठहरा है, उसके लिए मैं अभिनंदन भी देना चाहता हूँ। इनोवेशन से अच्छा जो है, नए चीज़ आगे आते, और इनोवेशन, स्किलिंग, रीस्किलिंग, अपस्किलिंग,
ये विषय जो है बार बार अपडेट कर लेना चाहिए। जितना हम जो है आगे बढ़ेंगे उतना जो है आज अपने को स्थान मिलने का प्रावधान है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ दुनिया में आगे आने वाले बाई 2030 there is going to be an opportunity of 30 crore jobs in the world। 30 करोड़ युवाओं को नौकरी मिलने वाला है। मुझे विश्वास है भारत से दुनिया से सबसे ज़्यादा लोगों का भारत का ही संख्या रहेगा, मुझे विश्वास है। बिकॉज इंडिया इज यंग कंट्री, डेमोग्राफिक डिविडेंड है। बाकी सारे देश बूढ़े बन रहे हैं, भारत एक यंग इंडिया बनने वाला है। तो इसलिए ये इट हैज़ गॉट ए बिग एडवांटेज, बहुत ही एडवांटेज रहेगा। इस एडवांटेज को दुनिया में हम यहाँ से पढ़े नवाचार से अच्छे टेक्नोलॉजी अडाप्ट करके, जैसे आजकल नए टेक्नोलॉजीज आए, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ऐसे जो नए जो टेक्नोलॉजी आए, ये टेक्नोलॉजी से ज़्यादा जो है आपका ज्ञान आगे चलेगा। और ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से जितना आपका शिक्षण होगा वो शिक्षण से ही आपका डिग्री बढ़ेगा, आपका क्वालिफिकेशन रहना चाहिए। इन स्किलिंग विदाउट ग्रेड ऑफ क्वालिफिकेशन you can't get the job. You have to get the job of that qualification which suits to that nation. आज जर्मनी, जापान और इवन ताइवान, साउथ कोरिया, ये 4 जो देश ऐसे हैं, ये लोग जो है काफ़ी टेक्नोलॉजी में और स्किल अपग्रेडेशन में बहुत टॉप है। और वहाँ के डिग्री अगर हम प्राप्त करना है, पढ़ना मुश्किल होता, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ वो हम लोग अगर ट्रेनिंग ले लिए तो वो नौकरी हमारे को मिलने के लिए ईजी रहेगा। तो इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है, आप लोगों से भी, मैनेजमेंट से भी अनुरोध है, ये नया टेक्नोलॉजी के माध्यम से स्किल अपग्रेडेशन, स्किल लेवल्स, हमारे इंडिया के स्किल लेवल्स बहुत लो है। जर्मनी, जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, इनके जो है काफ़ी आगे है। तो आर्यन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट को मैं एक सलाह देना चाहता हूँ, आप लोग ये डिग्रीज को जो है आपके जो भी आप अभी जो कैरिकुलम दे रहे उसको जो है इसके साथ अपडेट करके आगे बढ़ाइए। मुझे विश्वास है 100% अपने को नौकरी मिलेगा, 100% नौकरी के लिए कोई चिंता नहीं है। लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है, आप यहाँ से पढ़ने के बाद आप आगे चलेंगे, आगे चलने के बाद मैं कहाँ जॉब करूँगा, ऐसा जाकर आप जॉब मांगने वाले आप नहीं होना चाहिए। आप जो है जॉब प्रोवाइडर बनना चाहिए, जॉब सीकर्स नहीं होना चाहिए। जॉब प्रोवाइडर बनना चाहिए। जैसा मेरे क्षेत्र में मैंने देखा, एक लड़की है, वो लड़की इंटरमीडिएट पढ़ी है, ज़्यादा पढ़ी नहीं। मैं लेबर मिनिस्टर था सिकंदराबाद, वेयर आई वाज इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उसके लड़की के माता पिता नहीं हैं। मैं वो लड़की के पास गया था मिलने के लिए, उनके परिवार को। वो लड़की ने मुझे मिली, मैं इसको पूछा कि क्या पढ़े, तो मैं इंटरमीडिएट पढ़ी हूँ, क्या करना चाहते, तो मुझे पता नहीं है, नहीं तुम कुछ ना कुछ सोचे होंगे। तो बताया कि मैं टेलर बनना चाहती हूँ। ठीक है, तो मैं उनका मामा था, उनका मामा का बताया कि भाई हम इनको टेलरिंग सिखाएंगे और आपके घर के बाजू जो मकान है वो मकान में इनको थोड़ा सा प्लेस दीजिए, ये काम कर लेगी। तो आप यकीन कीजिए
मैं इनको ट्रेनिंग दिलवाया, बाद में जो है स्विंग का मशीन भी दिलाया। बाद में वो लड़की 2 साल 3 साल के बाद फिर मैं गया, वो लड़की 20 लोगों को काम देकर आज अच्छा काम कर रही है। दिस इज स्किलिंग। इसके लिए आत्मविश्वास होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए। मैं पढ़ा हूँ, मैं डिग्री किया हूँ, मैं फलाना डिग्री प्राप्त करके बाहर आया, लेकिन आपके आत्मविश्वास होना चाहिए कि मैं ये बनूँगा, मैं ये बन के निकलूँगा। ये आत्मविश्वास ही आपको आगे चलाएगा। आत्मविश्वास नहीं है, आप आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का जो है एक कार्यक्रम दिया। आज मेड इन इंडिया बनना चाहिए। आज इंडिया के बने हुए हर चीज़ दुनिया के कोने कोने में मिलना चाहिए। पुराना ज़माने में हमको ये था, मेड इन यूएसए हमको बहुत मशहूर होता था, लेकिन विद्यार्थी आप आगे आएंगे और स्टार्टअप शुरू करेंगे तो मुझे विश्वास है आत्मनिर्भर भारत से आपको जो भी विद्यार्थी आकर स्टार्टअप आगे आने के लिए काम करेंगे, हम आपको सहायता करेंगे। एक एक कैंडिडेट को 3 करोड़ रुपए तक आपका सहायता कर सकते हैं। लेकिन आपका सोच और आपका हिम्मत और आपका ज्ञान, नॉलेज, योर नॉलेज इज मोर इम्पॉर्टेंट, योर स्किल्स आर इम्पॉर्टेंट एंड योर डिटर्मिनेशन इज इम्पॉर्टेंट। तो इसलिए ये 3 बातों को आप ध्यान में रखिए, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, रिसर्च, ये 3 और विज्ञान, नॉलेज। नॉलेज इज पावर, मनी इज नॉट पावर, मनी इज नथिंग। मनी विल कम, मनी विल गो, बट नॉलेज विल रिमेन फॉर एवर। तो इसलिए आप नॉलेज गेन कीजिए। विद्यार्थी ये नहीं सोचे कि भाई मैं पैसा कैसा कमाऊँ, पैसा खुद आएगा, जो काम करेगा वो पैसा आएगा। तो इसलिए मैं आप लोगों से और भी अपेक्षा करता हूँ, और मुझे खुशी है अपने विद्यालय को, इस विद्यालय को, आर्यन ग्रुप ऑफ छात्राओं के पीछे आप लोग नवाचार से काफ़ी आगे बढ़े हैं। आर्यन कॉलेज जम्मू कश्मीर की इंजीनियरिंग छात्रों द्वारा विकसित आर्यन शिकारा ऐप के कॉपीराइट को मंजूरी दे दी है। इतना ही नहीं, और ऊर्जा से चलने वाली आर्यन सोलर बोट, आर्यन एग्रीन ऐप, एंड्रॉयड ऐप, कैप्स को पेपर फ्री बनने के लिए ऐप बनाया। आर्यन सेव कश्मीर ऐप, कश्मीर में बाढ़ के संबंध में आर्यन लाइफ सेविंग ग्लोव्स एंड हृदय रोग के जोखिम वाले लोगों को समय पर सहायता प्रदान करने के लिए आर्यन सेफ्टी हेलमेट, निर्माण तथा औद्योगिक स्थलों पर शीघ्र प्राथमिकता चिकित्सा प्रदान करने के लिए ई मुंशी जैसे कई अन्य महत्वपूर्ण इनोवेशंस आप लोग निकाले, उसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ। काफ़ी आप लोगों ने आगे बढ़ा, काफ़ी आगे बढ़ा। तो इसलिए मेरा अंत में इतना ही कहूँगा कि आप लोग यहाँ से आपके मन में रहता, आपके माता पिताजी भी सोचते हैं आप अभी क्या करने वाले हैं। डिग्री तो प्राप्त हो गया, लेकिन पढ़ाई जो है पूरा नहीं होता। पढ़ाई कभी भी पढ़ते रहना चाहिए। आप डिग्री कीजिए, मास्टर्स कीजिए, मास्टर्स करने के बाद रिसर्च कीजिए, पीएचडी कीजिए। डोंट एंड योर एजुकेशन अंटिल योर एंड ऑफ द लाइफ। ये निरंतर रहना चाहिए। वही लोग जो है काफ़ी और योगदान दे सकते हैं। तो इतना ही मैं कहते हुए, जो देश को नहीं भूलना, और दूसरी बात आर्यन इंस्टीट्यूट को नहीं भूलना, और हम जहाँ जन्म हुए वो इंस्टीट्यूट नहीं भूलना।
ये 3 विषयों को नहीं बोलना चाहिए। हम जिस गांव से आके पैदा हुए वो नहीं बोलना, और दूसरा जिस इंस्टीट्यूशन से मेरा जीवन ऊपर आया उसको नहीं बोलना, और सबसे ज़्यादा देश को नहीं बोलना। पढ़िए पढ़िए, नौकरी के लिए बाहर जाइए, जो देश जाना चाहते जाइए, जितना कमाना चाहते उतना कमाइए, लेकिन फिर जो है भारत को आइए और भारत को सहायता कीजिए। तो इसके लिए मैं आपको रामायण का एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। रामायण का छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। रामायण पढ़े ऐसे लोग हाथ उठाइए। रामायण मैं पढ़ा हूँ, हाथ उठाइए, राइट हैंड अप। हाँ बताइए। महाभारत पढ़े ऐसे लोग हाथ उठाइए। हाँ कम लोग हैं, पढ़ना चाहिए। महाभारत रामायण पढ़ना चाहिए। फिर मैं जब आऊँगा, जब रामायण पढ़े या नहीं पढ़े, जब तो मैं विश्वास करूँगा 90% लोग हाथ उठाना चाहिए। आपका कैरियर नॉलेज 90% रहने दीजिए, लेकिन 10% हमारा प्राचीन सभ्यता का, हमारा संस्कृति का, हमारा विरासत का ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। तो इसलिए मैं आप लोगों को रामायण का एक छोटा सा कहानी बताने के लिए मैं आगे आया। थोड़ा ध्यान से सुनना। रामायण तो फंडामेंटल्स आप जानते हैं। रामायण में प्रभु रामचंद्र जी लंका पर जो है विजय प्राप्त करते हैं। विजय प्राप्त करने के बाद लंका जो है बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है, वेरी रिच वन। तो राम जी के जो भाई है लक्ष्मण, वो लक्ष्मण जी जो है राम जी से कह रहे थे, भाई हम जो है लंका में ही रहेंगे, लंका बहुत ही सुंदर है। तो राम जी देखते हैं लंका, उनके ऊपर, उनके लक्ष्मण जी के ओर देखते, वो पूछते रहते कि क्यों? नहीं बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया है, यहाँ हर चीज़ जो है काफ़ी जो है सोना से ज़्यादा है। संस्कृत में श्लोक बताया राम जी ने उत्तर दिया, अपि स्वर्णमयी लंका, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते। अपि स्वर्णमयी लंका बोल तो लक्ष्मण जी को बता रहे, बहुत बड़ा स्वर्ग से भी, और ये जो है गोल्ड से भी बहुत अच्छा है, स्वर्ण से ही जो अच्छा है। अपि स्वर्णमयी लंका, लंका स्वर्ण से अच्छा है। न मे लक्ष्मण रोचते, लेकिन मुझे इच्छा नहीं है। क्यों? जननी जन्मभूमिश्चा स्वर्गादपगरीयसी। मैं जहाँ जन्म हुआ मैं वहाँ अयोध्या जाऊँगा और मैं वहीं रहूँगा, वहीं जो है मैं पालन करूँगा। वही मेरे लिए स्वर्ग है, वही मेरे लिए गोल्ड है। तो इसलिए आप लोग भी समझिए, अमेरिका में भी मोर प्रॉस्परस, मोर सॉफिस्टिकेटेड, मोर काफ़ी भौतिकता में आगे बहुत बढ़ गया, लेकिन हमारा गांव में एसी भी नहीं है, हमारे गांव में कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे गांव में रहूँगा, मैं गांव को सेवा करूँगा। ये विचार आपके मन में। यहाँ हम निर्माण करेंगे, जहाँ वहाँ है यहाँ निर्माण करेंगे। ये विचार आप करेंगे, आगे वाले जनरेशन को सब मिलेगा। तो इसलिए मुझे बहुत खुशी है, आर्यन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट इज ए वेरी रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट, वेरी डिस्टिंग्विश्ड इंस्टीट्यूट,
one of the best institutes. I am very glad that I have come here to visit all of you and bless you. And you have given me opportunity. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं महामहिम राज्यपाल जी से और बाकी मंच पर उपस्थित गणमान्य अतिथियों से निवेदन करना चाहती हूँ कि हमारे जो अब बाकी MBA के स्टूडेंट्स हैं वो उनको डिग्री दें। स्टूडेंट्स, जिस सीक्वेंस में आपको बुला रही हूँ उसी में आपको आना है। तो MBA बैच से मैं बुलाना चाहूँगी अजीत कुमार सिंह, जुनैद अहमद भट्ट, अजीत कुमार सिंह, जुनैद अहमद भट्ट, कृष्ण कुमार गुप्ता, मोहम्मद आरिफ डार, अमित कटोच, अमरचंद, अमिती तुतेजा, फिरोज अहमद मीर, मनप्रीत कौर, मुस्तफ़ा बाशिर मीर, संजीत कटोच, सनी कुमार, सुखमनप्रीत कौर, आकिब एजाज भट्ट, गुरदास, ऋषभ कुमार, ये हमारे MBA बैच के स्टूडेंट्स हैं। इसी के साथ मैं माननीय राज्यपाल जी से अनुरोध करना चाहती हूँ कि हमारे मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को वो मेडल दें। मनप्रीत कौर, संजीत कटोच, मोहम्मद आरिफ डार, साकिब शाफी मीर, शौची, मीनाक्षी, राहुल पासवान, मोहम्मद फैज़ आलम, अमनदीप, रमनदीप, सिमरनदीप।
Congratulations students. सबके लिए तालियां बजाइए एक बार. Thank you very much, sir. हाँ जी, आप ग्रुप फोटोग्राफ के लिए अब समय है, और उससे पहले मैं महामहिम जी से कॉन्वोकेशन क्लोज करने के लिए भी अनुमति चाहती हूँ. May I now request Honorable Governor His Excellency Shri Bandaru Dattatreya ji to close the convocation, to declare the convocation close. I declare the convocation is closed. मैं ग्रुप फोटोग्राफ के लिए स्टूडेंट्स और उनके जो कोऑर्डिनेटर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि बैच वाइज वो स्टूडेंट की पिक्स के लिए कोऑर्डिनेट कर लें, और साथ ही मैं अनुमति चाहती हूँ कि हम एक हरियाणा स्कॉलरशिप के लिए पोस्टर लॉन्च करवाना चाह रहे हैं, जिसमें कि 100 नीडी और डिजर्विंग स्टूडेंट्स के लिए हम स्कॉलरशिप जो है आर्यन्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की ओर से जो है वो प्रदान की जाएगी. तो प्लीज़ सर, ये आपकी हम अगुवाई में ये करना चाहते हैं. We'll be drafting 100 students of Haryana. We are launching the scholarship. इसको पोस्टर को रिलीज. ग्रुप फोटोग्राफ्स के लिए आप रेडी रहें. So we'll be adopting 100 students from Haryana. धन्यवाद. ग्रुप फोटोग्राफ के लिए स्टूडेंट रेडी रहे. इससे पहले मैं अनुमति चाहती हूँ कि मोमेंटो प्रेजेंटेशन हम कर सकते हैं सर, अगर आपकी अनुमति है तो. मैं ऑनरेबल गवर्नर और बाकी जो गणमान्य व्यक्ति हैं उनसे मैं अनुरोध करना चाहती हूँ कि वो गुरविंदर सिंह सर जो कि रजिस्ट्रार है MRSPTU बठिंडा, उनको मोमेंटो एज अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट जो है वो दें. इसके बाद मैं फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी सभी डिग्निटरीज़ को कि वो स्पेशल सेक्रेटरी ट्राइबल अफेयर्स मोहम्मद हारून मलिक सर को मोमेंटो दें. इसके बाद मैं महामहिम से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वो श्री राजीव गुप्ता सर IAS सेक्रेटरी PSBT एंड IT चंडीगढ़, उनको मोमेंटो देके ऑनर करें. मैं सभी से अनुरोध करना चाहती हूँ अंशु कटारिया सर से भी कि वो अब एज अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट जो है ऑनरेबल गवर्नर को आर्यन्स ग्रुप ऑफ कॉलेज की तरफ से मोमेंटो दें. बहुत बहुत धन्यवाद. मैं डॉक्टर प्रवीण कटारिया डायरेक्टर जनरल आर्यन्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस को रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वो यहाँ आके वोट ऑफ थिंक प्रपोज करें. इसके बाद स्टूडेंट्स ग्रुप फोटोग्राफ के लिए रेडी रहेंगे. Honorable Governor of Haryana, Shri Bandaru Dattatreya ji, Secretary IAS PSBTE and IT Chandigarh, Shri Rajiv Kumar Gupta ji, Special Secretary Tribal Affairs Department, Jammu and Kashmir, Mohammad Haroon Malik ji, Registrar MRSPTU Bathinda, Professor Dr. Gurinder Pal Singh ji, Chairman Aryans Group of Colleges, Dr. Anshu Kataria ji, distinguished guests, parents, friends from media and police, Aryans team members and my dear students, Namaskar. It is indeed our pleasure to have this noble gathering assembled here on this blissful event. We are extremely grateful to Honorable Governor of Haryana, Shri Bandaru Dattatreya ji, who in spite of his very tight and busy schedule accepted our request and consented to be the chief guest on this 11th convocation of Aryans Group. We are lucky to have you, sir, amongst us today.
Sir, to express our gratitude for you, I am reciting few lines. सविकृत आमंत्रण किया, रखा हमारा मान, कैसे करें कृतज्ञता, स्वागत है श्रीमान। अर्पित श्रीमन आपको चंद सुभाषित फूल, क्षमा आप करना हमें हो गई हो जो भूल। सूरज जैसे आप हैं, हम हैं दीपक तुच्छ, क्या अर्पित आपको करें भेंट दिए कुछ पुष्प। बहुआयामी आप है, बहुआयामी काज, पाकर अपने बीच में पुलकित हैं हम आज। सुलभ नहीं होते सदा ऐसे भव्य अध्यक्ष, आयोजन सार्थक हुआ लक्ष्य। थैंक यू सर। Sir, your presence and blessings have certainly boosted the morale of graceful audience present here. We are indeed fortunate to get the blessings of Secretary IAS, PSBTE and IT, Chandigarh, Shri Rajiv Kumar Gupta ji. Sir, under your able guidance, Polytechnic and Industrial Training Institutes are getting new insights. We are thankful to you, sir, for sparing your valuable time and enlightening our students. Thank you, sir. We are equally privileged to have esteemed presence of Registrar MRS PTU Bathinda, Professor Dr. Gurinder Pal Singh ji. Sir, with your bright direction, the prospects of technical education are expanding and providing enormous scope to the students to uncap their talents and touch the greater heights of achievements. We are indebted to you, sir, for your presence. We are really honored to have amongst us Special Secretary, Tribal Affairs Department, Jammu and Kashmir, Mohammad Haroon Malik ji. Sir, your presence in this event would have definitely left some spark in the minds of our students. So you have come all the way by road on such a short notice. We are thankful to you, sir, for being here in this event. We appreciate and thank from the core of our hearts to the members from media and police who are doing their duty without worrying about the timings, hunger and summer heat. We wish good luck to the graduates for the start of their new career. Once again, I again bow down to our chief guest, Honorable Governor of Haryana, and all the personalities present here. Asto ma sadgamya, tamso ma jyotirgamya, मृत्योर माँ अमृत गम्या, ओम शांति शांति शांति। जय हिंद, जय भारत। ग्रुप फोटोग्राफ के लिए प्लीज आप आगे आ जाएं। कोऑर्डिनेटर्स, आप प्लीज बच्चों को गाइड करें। हम लोग खड़े हो जाते हैं, बच्चे आगे आ जाएं। स्टूडेंट्स, मेक इट फास्ट। बच्चे आगे आ जाओ, जल्दी जल्दी नीचे बैठ जाओ। कुछ बच्चे गर्ल्स नीचे बैठ जाएं। आप अपनी डिग्रीज को सामने होल्ड कर लेंगे। आप जल्दी आ जाएं। प्लीज कोऑर्डिनेटर्स जो एचओडीज हैं गाइड करें। आई थिंक हाइट के अकॉर्डिंग। बेटा आपकी हाइट ज़्यादा, आप थोड़ा साइड में रहिए। दो ग्रुप हैं एक्चुअली। मीडिया वाले चाहते हैं कि ज़्यादा बच्चे, द ट्रिब्यून इज आस्किंग दैट मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स शुड। बेटा यहाँ से विकेट दो। बच्चे बच्चे आप यहाँ से साइड पे दो, यहाँ से। चलो, जितने बच्चे आगे फ्रेम में, बाकी लोग साइड। गर्ल्स आपका अलग से करते हैं, आप जस्ट वेट करिए। यस खरबंदा जी प्लीज। चलो गर्ल्स जल्दी से बैठो, गर्ल्स भी फास्ट बैठ जाओ। हरी अप हरी अप। हाँ जी चलो ठीक है। हाँ जी चीयर्स। हिप 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 हिप। बच्चों जोश से हिप हिप। अपनी डिग्री सामने कर लें प्लीज। पीछे वाले नहीं, साइड वाले और नीचे वाले।
ग्रुप फोटोग्राफ के बाद जैसे एकेडमिक प्रोसेशन जिस सीक्वेंस इस हॉल में एंटर हुआ था, स्टाफ मेंबर्स, लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स, ऑनेबल डिग्निटरीज जितने भी हैं वो उसी सीक्वेंस में अब ये बच्चे सारे साइड पे सभागार से बाहर अब जाएगा। ये बच्चे साइड पे, नेक्स्ट बच्चे आ जाएं। Say some energy. Energy, hip hip. It's a day for celebration. Be some energy, hip hip. Hip hip. Say cheese. We victory का साइन भी बना सकते हैं यहाँ से। Congratulations all. आप प्लीज आराम से साइड में चले जाएं और दूसरा बैच जिस सीक्वेंस में ये था आ जाएं, जल्दी कर लें। एक तरफ से जाएं और एक तरफ से आएं। Don't make it clumsy. आराम से जाएं। Students, make it fast. बच्चों फास्ट करो, ये बैठो बच्चे, सिट डाउन। मनप्रीत ये माइक ले जाओ। बस ये लास्ट ग्रुप फोटो है। सेकंड रो नीज पे हो जाइए। सेकंड रो प्लीज आप लोग नीज पे हो जाइए। बी फास्ट। बेटा बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। ओके ठीक है, आप खड़े हो जाओ, साइड हो जाओ। बेटा आप ये सामने आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। चलो ठीक है अभी बस यस ठीक है। मनप्रीत सुंदर बच्चे आप यहाँ आ जाओ, लास्ट यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। आप में से एक जो बीच में सेंटर में, आप यहाँ आ जाओ। आप यहाँ आप बस मनप्रीत और चेंजेस मत करो, आप टाइम नहीं है, आप जल्दी जल्दी इसको वाइंड अप करो। थैंक यू, कंग्रेचुलेशन। इसी के साथ एकेडमिक प्रोसेशन जो है कॉन्वोकेशन हॉल से बाहर जाएगा। पहले जो है लेक्चरर्स, सारा स्टाफ आरएनएस का स्टाफ आ जाए, सारा जल्दी अनाउंस कर दो। आरएनएस का जो भी स्टाफ है वो यहाँ पर आ जाए स्टेज के पास। आरएनएस का स्टाफ प्लीज स्टेज के पास आ जाए। सर आरएनएस के स्टाफ के साथ फोटोग्राफ चाहते हैं सर, नीचे आ रहे हैं स्टाफ, सारा आरएनएस के स्टाफ जल्दी जल्दी आइए। ऑल आरएनएस स्टाफ
रशीद